Question number 3 of exercise 13.2. 13.3 है 13.3 sorry. Of the student in a college, it is known that 60% resides in hostel and 40% are day scholars, that is not residing in hostel. Previous year result reports that 30% of all students who reside in hostel attains A grade and 20% of day scholars attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at a random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hostelier? ध्यान दो यहाँ पर जो E1 और E2 है, that is actually the student is a hostelier और दूसरा क्या हो जाएगा? The student is a day scholar. Is a day scholar. अब यहाँ पर ऑलरेडी एक इवेंट अकर हो चुका है कि the student attained grade A. The student, अब जो आप तीसरा और चौथा जो आप बना रहे हो इवेंट आपका, वो एक्चुअली में आप E1 गिवन है और E2 गिवन है बना रहे हो. उसको ध्यान से पढ़ो तो आप यहाँ पर एक्चुअली है क्या? The student attains ग्रेड A. ये तो इवेंट में समझ आ रहा है. ठीक है, ग्रेड A आया उसके पास. अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? दैट इज ही वाज अ हॉस्टेलियर, जिसका ग्रेड जो ये इवेंट तो अगर हो चुका है ना कि द स्टूडेंट अटेन्स ग्रेड ए उसका आ चुका है. ठीक है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो हॉस्टेलियर था, इसी का ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए निकालनी है मुझे. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A given E1 upon probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2. तो probability of E1 निकाल लेते हैं अलग से, probability of E2 निकाल लेते हैं, सेम बेसिस पे probability of A given E1 निकाल लेते हैं and probability of A given E2 कैलकुलेट कर लेते हैं. probability of E1 क्या होगा? He is a day scholar. तो कितने बच्चे हैं day scholars? 0.6 कह सकते हैं इसको. एंड हॉस्टेलियर कितने हैं? 0.4. A given E1 का मतलब एक हॉस्टेलियर का ग्रेड A आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है आपको? 30%. 0.3 कह सकते हैं इसको. एंड एक डे स्कॉलर की ग्रेड A आए, दैट इज 0.2. अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. That will be equal to 0.6 into 0.3 upon 0.6 into 0.3 plus 0.4 into 0.2. That is 0.18 ऊपर आ जाएगा, divided by 0.18 plus 0.4 to the 8, 0.08. This will be 0.18 divided by 0.26. So 18/26 है. Calculate करेंगे, this will be 2 9s are 18, 13. 9/13 is the answer. So the probability is 9/13 कि जो स्टूडेंट ग्रेड A लेके आया है, he is a hostelier. He is a hostelier. तो समझ आ रहा है बेटा कि आपको पार्टीशंस कैसे चूज करने हैं. पार्टीशन कैसे चूज करने हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. चलो क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 सारे बच्चे करेंगे एक बार. 4-5 मिनट में इसको भी डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है अभी यहाँ पे हमें? Your factory has 2 machines A and B. Past record shows that machine A produces 60% of the item of output and machine B produces 40% of the items. Further, 2% of item produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put in one stockpile and one item is chosen at a random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? तो सबको समझ आ रहा है बेटा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में कि E1 और E2 क्या है यहाँ पे?
E1 और E2 are item is produced by machine 1, ये machine 1 से प्रोड्यूस हो रहा है, और E2 है item is produced by machine 2. A इवेंट क्या है बेटा? Item is defective. Item is defective. So we have to find probability of E2 given A कि वो machine 2 से मैन्युफैक्चर हुआ है. The probability of E2 into probability of A given E2 upon probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 हो जाएगा आपका. So probability of E1 क्या आएगा आपके पास? Probability of E2, probability of A given E1, probability of A given E2. इसको कैलकुलेट करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है बेटा? कि आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 1. तो कितने आइटम प्रोड्यूस कर रहा है आपका मशीन 1? 0.6. 0.4 आपका E2 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. ठीक है. एंड फर्दर मशीन 1 कितने डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है? 0.02. 2% है बेटा, और यहाँ पे आ जाता है 0.01. सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बने क्या बन जाएगा? 0.4 into 0.01 डिवाइडेड बाय 0.6 into 0.02 plus 0.4 into 0.01. आंसर इज 1/4. 1/4 इज द आंसर. बात सबको समझ आ रही है बच्चे? हाँ जी, समझ आ रही है बात? क्या गलती हो रही है? ये बहुत ध्यान से करना है. परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते रहो, बहुत ध्यान देना है. ठीक है, चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका. लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जांपल नंबर 18. एग्जांपल नंबर 18. एग्जांपल 18 क्या कह रहा है आपको? सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ अ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज. ऑफ द पीपल हैविंग HIV, 90% of the tests detect the disease, but 10% goes undetected. Of the people free from HIV, 99% of the tests are just HIV negative, but 1% are diagnosed as showing HIV positive. From the large population of which only 0.1% have HIV, one person is selected at a random, given the HIV test, and the pathologist reports him or her as HIV positive. What is the probability that the person actually has HIV? मतलब क्या है? पहले एक बार डेटा को फॉर्मुलेट कर लेते हैं पूरा. कि आपके पास पूरी एक पॉपुलेशन है जिसमें कुछ पर्सन HIV पॉजिटिव है और कुछ पर्सन HIV नेगेटिव है. अब जब ये रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो इनका जो टेस्ट होता है या तो वो ट्रू आंसर देगा या फॉल्स रिपोर्ट होगी उसकी. सेम HIV नेगेटिव की भी ट्रू रिपोर्ट, फॉल्स रिपोर्ट. अब इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं एक बारी. ये क्या कह रहे हैं? पहली लाइन क्या कह रही है? ऑफ पीपल हैविंग HIV, जिनको HIV है, मतलब इनमें 90% ऑफ द टेस्ट 90% ऑफ द टेस्ट. किसी का माइक ऑन है, एक बार बंद कर लें. अंकिता बच्चे माइक ऑफ कर लो. जिनको HIV, जो HIV पॉजिटिव हैं, उनमें से 90% डिटेक्ट हो जाते हैं. तो मतलब ट्रू उनकी रिपोर्ट आ जाए. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 90% को अगर हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.9. बट 10% का अनडिटेक्टेड चला जाता है, तो मतलब 0.1 इज अनडिटेक्टेड, फॉल्स आ जाएगा इसका. इसकी रिपोर्ट फॉल्स आएगी. सेम तरीके से आगे बढ़ते हैं कि जिन्होंने HIV, जो HIV नेगेटिव हैं, 99% ऐसे हैं जिनका रिपोर्ट ट्रू आएगी, बट 1% ऐसे होंगे जिनकी रिपोर्ट फॉल्स आएगी. परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी में जाते वक्त बहुत ध्यान देना है बेटा. अब इसके बाद इसने क्या बोला?
कि फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1% है HIV। अच्छा ध्यान दो, 0.1% का मतलब क्या होगा? 0.1 अपॉन 100। तो कैन बी राइट इट लाइक दिस 0.001। ठीक है, तो मतलब HIV नेगेटिव पर्सन कितने हैं? 0.001। अच्छा, अगर 0.1% अगर HIV नेगेटिव है, HIV पॉजिटिव है, सॉरी ये HIV पॉजिटिव है, 0.001 आर HIV पॉजिटिव। ठीक है, तो HIV नेगेटिव कितने होंगे बच्चे आपके? तो 0.1% में से अगर आप 100% में से 0.1% बता दे तो 99.9% लोग। तो परसेंट को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? बच्चे इसी में गलती करते हैं, बच्चे ध्यान देना, इसी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हुए गलती हो जाती है बेटा। आगे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसने क्या कहा यहाँ पे मुझे बताना है कि पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दे दी पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो एक्चुअल में HIV पॉजिटिव था। तो यहाँ पे हम E1 E2 क्या लेंगे बेटा? E1 E2 क्या है? पर्सन इज एक्चुअली HIV पॉजिटिव, a person is actually HIV नेगेटिव। ये पॉजिटिव वाले हैं, ये नेगेटिव वाले। तो ए क्या है? ए इवेंट है बेटा पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स, पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स पर्सन टू बी HIV पॉजिटिव। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है मुझे? E1 गिवन है, that is probability of E1 into probability of A given E1 divided by probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2। एक एक करके probability निकाल लेते हैं सारी बेटा। probability of E1, probability of E2। E1 का मतलब क्या है? person is actually HIV positive। ऐसे कितने हैं बेटा? 0.001। person is actually HIV negative। probability of A given E1 क्या है? मतलब वो HIV पॉजिटिव है और उसकी रिपोर्ट भी HIV पॉजिटिव आ रही है, मतलब ट्रू रिपोर्ट आ रही है 0.9। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, पर्सन HIV नेगेटिव है बट रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आ रही है, मतलब रिपोर्ट क्या आ रही है? फॉल्स 0.01। वैल्यूज पुट कर दोगे, आंसर आ। इसका आंसर है बेटा 90/1089। इसका आंसर आएगा बेटा 90/1089। That is 0.0001 into 0.9 divided by 0.001 into 0.9 plus 0.999 into 0.01। सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप द थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छे से क्लियर है बच्चे? पक्का पक्का श्योर? एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा भाई कहने क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। सारे बच्चों ने नोट कर लिया? एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 पढ़ेंगे बच्चे। What is it saying? A man is known to speak truth 3 out of 4 times। एक आदमी है जो चार में से 3 बार सच बोलता है, एक बार झूठ बोल जाता है। ठीक है, he throws a die and reports that it is a 6। Find the probability that it is actually a 6, that it is मतलब वो सच बोल रहा है, he is speaking truth। ये भाई तुम्हारे वाला क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे बेटा? तो एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या मैं बोल सकता हूँ कि E1 जो इवेंट है और E2 जो इवेंट है वो ये होगा द मैन स्पीक्स ट्रुथ, और दूसरा होगा द मैन
डू नॉट स्पीक ट्रूथ। ठीक है बच्चे, ए इवेंट क्या है? So, He reports there are six. 6 on the die. On the die he reports 6. मुझे क्या निकालना है? It was actually a 6, मतलब बंदे ने सच बोला। तो probability of E1 into probability of A given E1 divided by probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2. Got it? अब इसकी probability सबसे मेन है। probability of E1 क्या है, probability of E2 क्या है, probability of A given E1 क्या है, probability of A given E2 क्या है। मेरे ऐसे लिखने की ना थोड़े से लॉजिक है बेटा। probability of E1 और probability of A given E1 एक साथ मल्टीप्लाई होती है, इसलिए मैं इसको एक साथ इधर ऐसे लिखता हूँ एक ही लाइन में। और probability of E2 और probability of A given E2 एक साथ मल्टीप्लाई होती है, इस वजह से मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, तो probability of E1 क्या है बेटा? The man speaks truth, तो 3/4। probability of E2, the man do not speak truth, 1/4। तो probability of A given E1 मतलब the man speaks truth and there is a he reports 6 on the die। तो 6 कितनी बार, अब उस बंदे ने सच बोला तो मतलब एक्चुअली में 6 था ना उस पे, तभी तो सच बोला। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? 1/6। तो 6 आएगा उसके ऊपर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 1/6। तो पर्सन सच नहीं बोल रहा और he reports कि उसके ऊपर 6 आ रहा है, मतलब 6 नहीं था उसके ऊपर, 5/6। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी आनी चाहिए आपको। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/4 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय ये वाला। दोनों ऊपर ये कहना क्या चाह रहा है बताओ कि जो Probability of A की वैल्यू ट्रूथ है उस पे डाई पे 6 आ रहा है। he report 6, वो रिपोर्ट कर रहा है 6, डाई पे 6 नहीं आ रहा। ये बात सच बंदा बोल रहा है, कि 6 आ बंदा बोल रहा है जैसे मतलब मैंने बोला कि मैं 3 आउट ऑफ 4 टाइम सच बोलता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने बताया आपको कि ये 6 है, अब मैं सच बोल रहा था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक्चुअल 6 था उसके ऊपर, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E2 का मतलब क्या है? अब मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं बोलूँ कि रिपोर्ट कर रहा हूँ 6 है, तो मतलब एक्चुअली 6 नहीं था ना उसके ऊपर। 6 नहीं था तो फिर क्या होगा? नॉन 6 होगा कोई ना कोई, दैट इज 5/6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 3/4 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय 3/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 5/6। तो क्या हो जाएगा आपके पास? कैलकुलेट कर सकते हो आप, इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 3/8। आई होप ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। बेस थ्योरम अच्छे से क्लियर, बढ़िया से।